and I am recording the session, okay, so that if anybody is not joining, I will share the recording with them. In future, from you as well, kids, if you are not able to join for some reason, you can let me know in advance so that I will record the session and I will share it with you. Okay. Good morning, teacher. Good afternoon, Karan. Is that Karan? Yes. Okay. Okay, kids. So anyway, start. Not sure actually if other kids are joining today. So let me share my screen. Teacher, what is the session now? We are going to continue learning the castling. Okay. So again, why we repeat again? so that you learn it properly. Okay. There should not be any gaps. Let me share my screen. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so kids, yesterday we talked about castling. Okay, so if few important things about castling are the precondition. Okay, two preconditions we learned yesterday. First, there must not be any piece between the king and the rook. Okay, so for example, this bishop and knight. Okay, they must come out first. For example, as we see yesterday. Okay, this way. Now both the white king as well as the black king, they can castle. Can you see? Then another thing is the king and the rook, they must not have moved. Another precondition is the king and the rook must not have moved. Okay. And king plays first 2 squares and then the rook comes to its left hand side, right? Similarly for black as well, you can do the castling. Okay. So up to this, everything clear to everyone? Yes. Okay. And yesterday we did the practice as well. Okay. So I hope everybody understood this clearly. Now, one more thing. Okay. Let me go back and show you something. Okay. Let's play few more moves. Okay. Now what I am trying to do is I will now from white. Okay. So let's play this. And from black side, he captured the pawn. Okay. Now he played this. Okay, and we captured and gave the check. Okay, can you see there is a check to the king now? Okay, now if you say I will castle, okay, so answer is no, you cannot castle when the king is under check. Okay, when the king is under check, you cannot castle. Okay, understood, kids? This is new thing. Okay, when the king is under check, you cannot castle. Okay, or suppose now let me take another example. Suppose you played this, you played this, you played this, played this. Okay, you played this. Sorry, you played this, you played this. Okay, you played this and you captured. Okay, now is there a check to your king, kids? Is there a check? No, sir. Okay, no. Okay, but if you see, sorry, if you, what happened? 1 second, kids. Yeah, not this, not this as well. Okay, now if you see, although there is no check, but how the king moves? The king moves like this, right? Correct. It goes 2 squares. Correct. स्वस्तिका की तोंडात पीसेस नाही घालायचे बेटा. Give respect to the pieces. Okay, then only you can be a good player. Okay, so when the king passes by, okay,
ज्यावेळेस किंग, जैसे किंग यहाँ से मूव होता है तो वो एक एक स्क्वायर जाता है, राइट, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। और आप अगर देखोगे तो जाते वक्त बीच में चेक आ रहा है। ओके, सो when there is a check to the king or when there is a check coming in between the path of the king, then also you cannot castle. ओके, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो कैसल करने ही नहीं देगा वो। कैन यू सी, you cannot castle. But now if you play this, okay, if you play this, suppose he played this, now you can castle. Okay, क्योंकि मैंने ये चेक रोक दिया बीच में। कैन यू सी द पॉन, करण सॉरी, आपका आगे आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हम क्यों नहीं कर सकते चेक? हम क्यों नहीं कर सकते? चेक जब आता है उसका मतलब क्या होता है? थ्रेट है, राइट। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपका किंग है, ओके, रियल वर्ल्ड में इमेजिन करो, ओके। और मैं क्या किया, मैं आपका ओपोनेंट, मतलब जो आपका शत्रु राजा है उसका सैनिक हूँ। ओके, मैंने क्या किया है, मैं तीर कमान लेके या गन लेके बैठा हूँ और विंडो में से ऐसे निशाना लगा रहा है। ओके, ऐसे निशाना लगा के बैठा हूं मैं, कैसे, ऐसे। तो मैं जस्ट इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही राजा निकलेगा मैं उसको शूट कर दूंगा, राइट। होता है ना ऐसे, बहुत बार मूवीज में देखा होगा आपने, या जो भी सीरियल्स वगैरह होता है उसमें वर्ल्ड वार 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 जब होते रहता है दो राजाओं के बीच में, तो ऐसे छुप के बैठते हैं, राइट। कैसलिंग तो कितना डायरेक्ट होता है, तो फिर क्यों नहीं कर सकते? कैसलिंग सेफ होने के लिए करते हैं कि नहीं? तो जैसे आप एक रूम में से दूसरे रूम में जा रहे हो, लेकिन बीच में अगर विंडो है और उस विंडो में से आपके शत्रु ने गन पॉइंट पे रखा है, तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, पहले विंडो क्लोज करोगे, राइट। पहले आप विंडो क्लोज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, अभी ये क्लोज हो गया, देखो, राइट। अभी कोई थ्रेट है क्या किंग को? अभी जा सकते हो, राइट। तो जैसे ही उनका अगला मूव होता है तो हम इसको कैंसल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खुला होगा, ओके, आपने ये खेला ही नहीं और आप डायरेक्ट कोशिश करोगे तो करने नहीं देगा, देखो, है ना। कैन यू सी, इज नॉट अलोइंग, क्योंकि यहाँ पे चेक आ रहा है। ओके, तो आज दो चीजें नहीं सीखी बच्चों हमने। एक, अगर उसको डायरेक्ट चेक है तो फॉर एग्जांपल इस केस में देखो, अभी डायरेक्ट चेक है तो भी आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो, करेक्ट। और दूसरा हमने सीखा कि जब वो उसको, क्या सीखा, कहाँ पे गया वो, राइट, एक पीछे लेते हैं, या उसको जब चेक आ रहा है तो भी आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो। ओके, और तीसरा एक पॉइंट होता है, लेट मी शो दैट टू यू। सपोज ये खेला, आपने ये खेला, उसने ये खेला है, और फिर सपोज आपने ये खेला, उसने ये खेला है। अभी देखो, अभी कैसलिंग कर सकते हैं क्या? क्योंकि फिर से बीच में चेक आ रहा है, राइट। तो सपोज फर्ज करो कि आपने ये खेला और वो पीछे चला गया, ओके। अभी कैसलिंग कर सकते हैं क्या? अभी तो चेक नहीं आ रहा है बीच में, राइट, किंग को भी चेक नहीं है, ओके। फिर भी कैसलिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब आप कैसलिंग करोगे, ओके, हाँ, जब आप कैसलिंग करके यहाँ पे आओगे तो किंग का डायरेक्ट चेक आ रहा है आपको, ओके। तो ये तीन कंडीशन है फिर से जो आपको याद में रखना है। एक, किंग को डायरेक्टली चेक नहीं आना चाहिए, ओके। दूसरा, किंग जब कैसल हो रहा है तो उसके बीच में, बीच वाला जो रास्ता है उसमें भी स्क्वायर है, उसमें चेक नहीं आना चाहिए। और तीसरा, किंग कैसल होने के बाद जिस स्क्वायर में जाने वाला है वहां पे भी चेक नहीं आना चाहिए, जैसे कि अभी इस केस में आ रहा है, ओके। तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो। समझ में आया? कोई क्वेश्चन किड्स, एनी क्वेरीज? I want
in real board we can't we can check, but is it an illegal move? Will Yes. it count like an illegal move? Right. That is what I am telling to you guys. Okay. So when there is a check coming to the king, or there will be a check coming in between the king's rook, okay, or after castling if there is a check coming, okay, और उसके बावजूद अगर आपका ओपोनेंट कैसल करता है तो आप उसको इलीगल मूव बोल सकते हो. ओके, इफ देयर इज अ चेक टू द किंग और आपके ओपोनेंट ने कैसल किया, आप क्या करोगे? आप सीधा हाथ ऊपर करोगे, आर्बाइटर को बुलाओगे और आर्बाइटर को रिपोर्ट करोगे इलीगल मूव. ओके, समझ में आया? Okay, so these are the three things we learned today. If there is a check coming to the king, or if there is a check coming in between the root of castling, or after the castling if there is a check coming to the king, then we cannot do castling. And even if उसके बावजूद अगर आपका ओपोनेंट कैसलिंग करता है तो वो इलीगल मूव होती है. We will raise hand and we will Call the arbiter. Okay. call the arbiter. And tell the arbiter that it is a illegal move. Okay. Everybody understood? Yes. Okay. Very good, kids. Now one more thing I am going to share with you. Let me draw some line. Okay, kids. So kids, one thing, when we learned about the chessboard basics, okay, that time I already told you. Still I am telling again. Okay, this is the king side. Okay, right side of the board. ये ग्रीन लाइन के राइट में जो है ये किंग साइड है और लेफ्ट में जो है वो क्वीन साइड है. ओके, हम जो शॉर्ट कैसलिंग करते हैं, अभी जो मैंने खेला यहाँ पे, ये जो कैसलिंग किया, ओके, ये कौन से साइड में हुआ अभी बताओ? King side casting. किंग साइड. ओके, इसीलिए इसको किंग साइड कैसलिंग. ओके, इसीलिए इसको किंग साइड कैसलिंग बोलते हैं. ओके, अगर मैं दूसरे टाइप का कैसलिंग करता हूं, ओके, Sir, it is called queen side castling or long side castling. तो जो दूसरा वाला रूक है, ओके किड्स, देयर आर टू रूक्स, राइट? सो वी कैन डू द कैसलिंग ऑन बोथ साइड्स. तो इस वाले रूक की तरफ जब करते हो आप तो उसको क्वीन साइड कैसलिंग बोलते हैं. क्वीन साइड, क्योंकि ये क्वीन का साइड है. ओके, ओके, क्योंकि ये क्वीन का साइड है. ओके, इट हैज अनदर नेम एज वेल, दैट इज लॉन्ग कैसलिंग. लॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप अगर काउंट करोगे तो इस किंग और इस रुक के बीच में का डिस्टेंस कितने स्क्वायर है? 1 2 3 स्क्वायर्स. और इस रुक और इस किंग के बीच में सिर्फ 2 स्क्वायर्स है. सो 2 इज शॉर्ट देन 3, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कैसलिंग. और अगर आप इस तरफ कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग कैसलिंग. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैसलिंग आर देयर? There are two types of castling. One is king side castling and another is queen side castling. King side castling is also called as short castling. Queen side castling is also called as long castling. Okay, in both the cases, in both types, three conditions are same. The rook and the king must not have moved. Okay, then there must not be any piece in between. Third thing, there must not be check coming to the king. Okay, or in the path of king's movement, there is not check coming in. Okay, or after the castling, the king is not under check. So if all these 5 conditions are satisfied, then you can do the castling. You can do any type of castling, king side or queen side. Okay, but 99% of the times, king side castling or short castling is done. Reason is king is more safe when it is being done the short castling. I will show you the example actually. Okay, now let's take the same example again. Okay, see, when you are doing short castling or king side castling,
Can you see in front of the king there are 3 pawns, okay, which are protected by the king as well as supported by the knight. This is supported by the rook, okay. But okay, ये समझ में आ गया? किंग के सामने जो तीनों पॉन्स है वो प्रोटेक्टेड है किंग की वजह से एज वेल एज नाइट की वजह से, ओके, और ये रुक की वजह से प्रोटेक्टेड है, ओके। बट अगर आप लॉन्ग कैसलिंग करते हो, जैसे कि मैंने ये खेला, उसने ये खेला, फिर इसको निकाला, ओके, ओके, और जब आप कैसल करते हो इसको, सॉरी, ओके, जब आप इसको कैसल करते हो तो कैन यू सी this pawn is far away from the king, okay, although it is protected by the knight, ये नाइट ने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा था, किंग भी प्रोटेक्ट कर रहा था और नाइट भी प्रोटेक्ट कर रहा था, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटेक्शन आ रहा है, ये रुक किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, रुक जब यहाँ पे आता है तो पॉन को प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो इन शॉर्ट ये वाला जो वॉल बना है यहाँ पे, ये थोड़ा वीक है कंपेयर टू दिस वॉल विच इज मच, ओके। तो इन शॉर्ट, शॉर्ट कैसलिंग इज बेटर देन लॉन्ग कैसलिंग, okay, and hence majority of the good players they go for short castling rather than going for long castling, okay। समझ में आ गया सबको? शॉर्ट कैसलिंग लॉन्ग कैसलिंग से बेटर होता है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन अच्छी तरह से होता है, ओके। लॉन्ग कैसलिंग के केस में यहाँ पे अटैक करना इजी हो जाता है सामने वाले को, ओके। फॉर एग्जांपल आपको इमीडिएट अगर दिखाऊं तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैक किया और इस पे भी अटैक कर रहा है। उसके बाद में इमीडिएटली वो क्या करेगा, इस पॉन को इजीली पुश करके आगे लेके आएगा या फिर क्वीन को यहाँ पे लेके आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि नाइट यहाँ पे फिलहाल प्रोटेक्ट कर रहा है तो पहले इंतजार करेगा कि इसको मूव करे, ओके। बट इन शॉर्ट यहाँ पे अटैक करना आसान होता है एज कंपेयर टू यहाँ पे अटैक करना, ओके, क्योंकि इसमें कैसल करते हैं तो पोजीशन थोड़ी क्लोज होती है, यहाँ पे थोड़ा दूर चला जाता है ये, है ना। तो इसीलिए कभी भी लॉन्ग कैसलिंग अगर कर भी लिया आपने तो मेक श्योर दैट इन द इमीडिएट नेक्स्ट मूव यू आर मूविंग द किंग हियर so that you will protect all the 3 pawns plus you will have protection from the knight, okay। लेकिन उस केस में फिर आपका एक मूव वेस्ट होता है, एक मूव एक्स्ट्रा लगता है आपको। समझ में आया? any questions kids? No sir. No, very good. Let me do one thing. Let's go to the study. Sir, can I show how to do that castling? Yes, hold on beta, I'll come to you guys, okay, to each one of you. Okay kids, can you see? Oh, sir. Okay, now you need to do the castling. How will you do it? कौन बताएगा? अभीर बताओ। Sir. White to play. Sir, we will king to 2 squares and rook will jump. Address बताओ आराध्या। Yes sir. King will come to G1, correct? King And will rook- come to G1 and rook will come to F1. F1, very good. Okay, now the next question to you. Can you castle? White to play, can you castle? First question. क्या आप Yes. कैसलिंग कर सकते हो? यस कर सकते हैं, ओके, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है, there is no piece in between, then there is no check coming in between, the king and rook are not moved, okay। तो आप कैसलिंग तो कर सकते हो। अगला सवाल, क्या आपने कैसलिंग करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, we can do the castling but should we do castling?
आपण कॅसलिंग केलं तर नाईट किंवा क्वीन याच्यावर अटॅक करू शकते, पण रूक लगेच मारेल. करेक्ट. अपन जर कैसलिंग केलं, ओके किड्स पे अटेंशन, अगर आप कैसलिंग करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे इमीडिएट चेकमेट आ रहा है. ओके, एंड बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड यू कैन नॉट कैप्चर एज वेल. आप इसको मार नहीं सकते हो क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है नाइट से. करेक्ट. तो हाँ, तो भले ही आप कैसलिंग जरूर कर सकते हैं लेकिन वो करना सेफ नहीं है. ओके, तो आपको बोर्ड पोजीशन देख के डिसाइड करना है बच्चों. ओके, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टडी, इस अभ्यास से क्या सीखते हैं हम कि कैसलिंग भले ही कर सकते हो लेकिन वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बोर्ड का पोजीशन देख के आप डिसाइड करोगे. ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी फिर से देखो, पोजीशन अलग है, सिर्फ क्वीन यहाँ के बजाय यहाँ पे. ओके, अगेन द सेम क्वेश्चन, कैन यू डू कैसलिंग? Answer is yes, you can do castling. But next question, should you do castling? No sir. No. क्यों नहीं? No teacher, no. हाँ, क्यों नहीं करेंगे करण? आराध्या रुको बेटा, आराध्या रुको. Queen can give checkmate. क्वीन कहाँ से चेकमेट देगा करण? कहाँ से? Queen F2 में क्वीन जाएगी और चेकमेट दे देगी. F2 में देगी क्या बेटा? कैसलिंग के बाद. कैसलिंग अगर कर दिया मैंने तो F2 पे आ सकता है क्या वो? Yes. No. नहीं, F2 में तो रुक मार देगा ना. Sir, it will come in H2. करेक्ट. H2 में भी आ सकता है ना, डायगोनल भी चलती है क्वीन, है ना करण? One thing, when it goes to F2, it has protection of the knight still. No, but there is a rook which will capture, right? तो आप अगर यहाँ पे Knight is मारोगे, protecting. but that's fine. You are losing your queen, correct? प्रोटेक्शन का फायदा क्या अगर आप लूज कर रहे हो तो, राइट? तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपकी क्वीन गई, व्हाइट का रुक गया और आपका नाइट गया. ओके, मतलब आपका क्वीन प्लस नाइट गया, उनका सिर्फ रुक और पॉन गया, राइट? तो किसको फायदा है? व्हाइट को फायदा है, राइट? ब्लैक का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, राइट? लेकिन अगर आप उसी मूव को थोड़ा सा ठीक से सोचोगे, इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग दिस, इफ यू कैप्चर दिस, इट इज अ चेक एंड मेट. ओके, क्योंकि सपोर्ट तो फिर भी है, राइट? तो आप इस केस में भी कैसलिंग नहीं करोगे क्योंकि वो सेफ नहीं है. ओके, लेकिन अगला सवाल फिर से, और एक सवाल बच्चों, आप कैसलिंग नहीं करोगे ये तो ठीक है, लेकिन अगर कैसलिंग नहीं किया तो भी चेकमेट है आपको. अगर कैसलिंग किया तो चेकमेट तो है ही, कैसलिंग नहीं किया तो भी चेकमेट है. आप क्या करोगे? सर, क्वीनने जर त्या बाजूच्या पॉनला मारलं तर आपण चेकमेट होऊन जाऊ. हाँ, तो मग खेळणार काय मग आता? Sir, we will move the rook to F1. ओके, रुक टू F1 मूव कर सकते हैं और इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कैसलिंग नहीं करना है. ओके, ये एक आइडिया है. लेकिन उस केस में क्या होगा, वो नाइट से मारेगा इसको और फिर से रुक को थ्रेट देगा, करेक्ट? क्योंकि पॉन का जो सपोर्ट है रुक वाला वो चला जाएगा, राइट? तो फिर अब क्या करेंगे? इससे कोई और बेटर मूव है बच्चों? सर, मुझे पता है. हाँ, बताओ. अपन ऋषभ, सर हमको क्वीन बेटा एक साथ एक ही बात करो प्लीज, एक साथ एक ही बात करो. स्वस्तिका बोलो, स्वस्तिका बोलो, स्वस्तिका बोलेगी. सर, we will put the queen in E2 and we can move the king at D2. किंग को मूव करने की जरूरत नहीं बेटा, आपने सिर्फ क्वीन यहाँ पे लाया या यहाँ पे लाया तो भी बहुत है. ओके, इफ यू ब्रिंग योर क्वीन हियर, ओके, अभी बताओ वो चेकमेट कर सकता है क्या यहाँ से? नो सर. नहीं कर सकता क्योंकि वो मार देगा, राइट?
So this is a good move. Okay. Very good. समझ में आया सबको? ये गुड मूव नहीं है, हमारी क्वीन भी तो मर सकती है ना बेटा, लेकिन जब वो मारेगा, आप मारोगे, वो मारेगा, आप फिर से मारोगे। अभी कैलकुलेशन करो, बोलो करण, क्या क्या गया और क्या क्या मिला आपको? आपका एक क्वीन गया और एक पॉन गया, उनका एक क्वीन गया और एक नाइट गया। किसका फायदा है? वाइट का, क्योंकि उसका तो पॉन गया। हाँ, तो व्हाइट को फायदा है ना, तो फिर क्यों डरने का? और इसी को क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन बोलते हैं। आगे के 2-3 मूव अगर आप सोचोगे, कैसे सोचते हैं? अच्छा, उसने अगर मारा तो मैं मारूंगा, उसने फिर से मारा तो मैं फिर से मारूंगा, मेरा एक पॉन गया, नाइट गया, मतलब 9+1 10 गया, उसका एक क्वीन गया, एक नाइट गया, मतलब 9+3 12 गया। 12 इज बेटर देन 10। अच्छा, मेरा फायदा हो रहा है, मारो, चलो बिंदास। ऐसा समझ में आया? और वैसे ही ब्लैक वाला भी सोचेगा, अगर मैंने मारा तो वो मारेगा, मैंने मारा तो वो फिर से मारेगा, अरे मेरा तो नुकसान है, मैं नहीं मारूंगा, फिर छोड़ो, है ना? तो ऐसे आपको सोचना है बेटा। ओके, हर एक को। मैं क्यों जोर जोर से बोल रहा हूँ? ये तो मैं माइंड में थिंक कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि मैं इसलिए जोर से बता रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से सोच सकते हो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन। तो वेन एवर यू मेक द मूव, यू नीड टू कैलकुलेट। आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ कैन यू कैसल? फर्स्ट क्वेश्चन। अब कोई सबने नहीं बोलना है। लेट मी कम टू समवन। अन्वेषा, आप बताओ बेटा। ओनली अन्वेषा विल टॉक। ओके, कैन यू कैसल? व्हाइट टू प्ले। नो No, you cannot. Castle, you can castle, right? You can do the short castling. You can do the long castling as well, right? But which one you should do? Short. Short. Okay, short. but we Short. cannot do short wrestling. क्यों? शॉर्ट कैसलिंग का नहीं कर सकते, चेकमेट हो सकता है। चेकमेट तो चेकमेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कैप्चर करेगा तो आप देखोगे कि आपका प्रोटेक्शन है वहां पे बिशप का। ओके, करेक्ट? तो वो मार नहीं सकता है। ओके, और लॉन्ग कैसलिंग भी कर सकते हो आप, लेकिन लॉन्ग कैसलिंग के केस में क्या होगा? जैसे ही ये मूव हो जाएगा तो आपको चेक बैठ रहा है यहाँ पे, राइट? What is the blue नो thing? नो 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 नो, यू कैन डू कैसलिंग एक्चुअली, नो इश्यू। चेक नहीं आ रहा है। दोनों दोनों कैसलिंग कर सकते हो आप, लेकिन शॉर्ट कैसलिंग इज बेटर। ओके, बिकॉज एज आई सेड, देर इज मोर प्रोटेक्शन. ओके, sorry, there is more protection from the bishop, so he cannot checkmate you here. Okay, okay, good. Let's move to the next one now. Now let me come to Aditya. Aditya, question to you. Can you do castling? And which type of castling you can do? Yes or no castling? Yes sir. तो पहले देखो फिर बताओ, कर सकते हैं क्या? शॉर्ट कैसलिंग कर सकते हैं क्या? पहले वो चेक करो आदित्य, क्या हम शॉर्ट कैसलिंग कर सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते बताओ? आराध्या बोलायचा नहीं है। ओके सर। एक ही बॉक्स पीछे है, बीच में। फिर से बोलो आदित्य, क्या बोला? पेरेंट्स ने बोलायचा नहीं है, प्लीज। नो सर, क्यों नहीं? एक बॉक्स बेटा आदित्य, मुझसे बात करो ना बेटा। व्हाई आर यू टॉकिंग टू योर मम्मा? डोंट टॉक टू हर।
मुझसे बात करो। यस सर। हाँ बोलो, क्यों नहीं कर सकते? आगे है तो रू नहीं कर सकते। रू एक रू बॉक्स आगे तो नहीं हाँ कर सकते। मतलब जो प्री कंडीशन है, रुक और किंग मूव नहीं होना चाहिए, तो इसमें से रुक मूव हो चुका है, राइट? मतलब शॉर्ट कैसलिंग नहीं कर सकते। अभी अगला सवाल, क्या हम लॉन्ग कैसलिंग कर सकते हैं? यस सर। नहीं 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 कर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डोंडो? क्यों नहीं? करण करण क्योंकि करण बोल, करण मत बोलो, करण मत बोलो। करण, आई विल कम टू यू सेपरेटली बेटा, डोंट टॉक। आदित्य बोलो। किंग एक बॉक्स आगे है। नहीं, किंग तो अपने होम स्क्वायर में ही है बेटा, किंग इज ऑलरेडी इन द होम स्क्वायर। किंग भी होम स्क्वायर में, रुक भी होम स्क्वायर में, तो तुम सोचो। कर सकती। नहीं कर सकते। क्या क्या प्री कंडीशन है बोलो, क्या क्या कंडीशन थी कैसलिंग नहीं होने के लिए? चेक आहे का? ठीक है सर। कुठे चेक आहे? चेक तर नाही आहे. किंगला चेक आहे का? बोर्ड बघ ना तू, मम्मीच्या चेहऱ्यावर लिहिलेलं आहे का सांग बरं. बोर्ड कडे बघ आणि सांग. हे बघ, हा बोर्ड आहे राईट. इथे बघ, इकडे चेक येतोय का? हा नाईट इकडे येतो, ओके, चेक नाहीये. बिशप इथे आहे, चेक नाहीये, ओके. पण किंग ज्या वेळेस इकडे जाणार आहे त्यावेळेस चेक येतोय मध्ये, राईट? करेक्ट. द चेक इज कमिंग इन बिटवीन, इसीलिए कैसलिंग नहीं कर सकते, ओके. लक्षात आला आदित्य? ध्यान में यस आया? सर। ओके, वेरी गुड. एवरीबडी अंडरस्टूड? कैसलिंग क्यों नहीं कर सकते? शॉर्ट इजीली नहीं कर सकते क्योंकि रुक हिल चुका है, और लॉन्ग इजीली नहीं कर सकते क्योंकि इसमें चेक आ रहा है बीच में, ओके. तो आपको अगर कैसलिंग करना है तो आप क्या करोगे? पहले इसको रोक लोगे, चेक को, ओके. इसके बाद में सपोज इसने अगर इसको मारा तो आप उसको मारोगे, और इसके बाद इसको मार दिया, ओके. और आप अभी कैसलिंग कर सकते हो, ओके. आई डोंट नो व्हाई इज नॉट अलाउइंग, बट यू कैन डू द कैसलिंग नाउ, क्योंकि अभी बीच में चेक नहीं आ रहा है, ओके. समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ लेट मी आस्क टू करण. करण, आपके पास आ रहा हूं मैं. बोलो, व्हाइट टू प्ले, कैन व्हाइट कैसल? यस Yes, we can castle. Why? The king is at its place, the rook is at its place. There is no check coming in between. Okay, so you can do the castling. Okay, this is called as long castling. Okay, कर सकते हैं क्योंकि कोई चेक नहीं है बीच में. वेरी गुड. नाउ लेट मी कम टू स्वस्तिका. हो गई. आर्यन, आर्यन कहाँ जा रहा है? आर्यन है ना? हाँ, ओके आर्यन. नाउ question, white to play, can we castle? Can we castle, and what type of castling we should do? Who are you asking to? Aryan. Okay. We can castle on the short or on the long side. Okay, and which one will you go for? I'd go for short castling. Why not long? Because the queen can give a check on one of our pawns. Like it can kill one of our pawns. Okay, very good. Okay, so kids, in this case, okay, बच्चों attention करो. Okay, दोनों टाइप का कैसलिंग हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है. ओके, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग करने के बाद यहाँ पे कैसे कोई थ्रेट नहीं है. ओके, नोबडी इज अटैकिंग दिस साइड. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वीन है, बिशप है, पीछे से रूक है. ओके, तो लेट अस डू वन थिंग. एक्चुअली लेट मी डू द लॉन्ग कैसलिंग नाउ. ओके, लॉन्ग कैसलिंग किया. ओके, इसके बाद में देखो इसने कैप्चर किया,
आप या तो बिशप से कैप्चर करोगे या क्वीन से पॉन से कैप्चर करोगे या क्वीन से करोगे। ओके, सपोज आपने पॉन से किया। ओके, तो इसके बाद में क्वीन इसको कैप्चर कर रहा है। ओके, कैन यू सी? और ये जो आपका कैसलिंग का पर्पस क्या होता है, किंग को सेव करना होता है, राइट? ये तो पूरा ओपन हो गया अभी, करेक्ट? यस समझ में आया? यस इसीलिए हम शॉर्ट कैसलिंग करेंगे यहाँ पे। ओके, दैट्स द रीजन वी विल गो फॉर शॉर्ट कैसलिंग। आप बोलोगे सर शॉर्ट कैसलिंग करने के बाद भी तो इसको मार सकता ही है, राइट? तो उस केस में मारने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल अभी बताओ, अपना रुक यहाँ पे प्रोटेक्शन है ना, अभी वो मारने की डेयरिंग करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही उसने मारा तो हम पहले तो क्वीन उड़ा देंगे, उसके बाद में अगर उसने मारा तो क्वीन फिर से मार देगी, राइट? तो अपने को डरने की बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग कैसलिंग के केस में क्या हो रहा था, आपका जो रुक का प्रोटेक्शन है, रुक का प्रोटेक्शन वो निकल गया ना यहाँ से, करेक्ट? रुक तो हिल जाता है यहाँ से, राइट? दैट इज द रीजन यू शुड गो फॉर शॉर्ट कैसलिंग। समझ में आया? तो हमने क्या किया बच्चों, आज अलग अलग बोर्ड पोजीशन देखे। ओके, जिसमें आपको बोर्ड पोजीशन देख के डिसाइड करना है कि हमको कौन से टाइप का कैसलिंग करना है। हाँ अबीर बोलो बेटा। I not got the chance. That's fine. We will take the chance in next week. Okay, next session. But सब जितने हुए हो सब समझ में आया ना अबीर? इवन इफ कुछ बच्चों को चांस नहीं मिला होगा, लेकिन सबको समझ में आया? ओके, आज हमने क्या सीखा? हमने कैसलिंग किस कंडीशन में नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि अगर किंग को डायरेक्टली चेक है या बीच में चेक आ रहा है या कैसलिंग होने के बाद अगर चेक आता है तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो। ओके, और हमने दूसरे तरीके का भी कैसलिंग सीखा, एक शॉर्ट कैसलिंग, दूसरा लॉन्ग कैसलिंग। शॉर्ट कैसलिंग किंग साइड होता है, लॉन्ग कैसलिंग क्वीन साइड होता है। ओके, It's less than 1 minute now. Yeah, less than a minute. We will stop here for today, kids. Okay, so last thing is short castling. Most of the times, 99% of the time you go for short castling because it is better and it is safer as compared to the long one. Okay, so I will share all these notes with you. Make a note of it and we will stop here for today, kids. Okay, bye bye, kids. Bye. Bye, sir. Enjoy. Bye, sir. Bye bye.